हाय स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट विच इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ. नाउ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ वी हैव two experiments, sonometer 1 and sonometer 2. Sonometer 1 based on law of length and sonometer 2 based on law of tension. Now these laws are based on fundamental frequency of instrument. Here, because we are using the sonometer instrument, that's why here the laws will be depends upon fundamental frequency of sonometer. Now see what is the formula of fundamental frequency of sonometer, which is here n equals to 1 upon 12 under root t by m, where this n is fundamental frequency, t is tension applied to the wire, L is vibrating length of the wire, and m is the mass per unit length, where the fundamental frequency will be the lowest frequency produced by any particular instrument. Fundamental frequency also called first harmonic of the instrument. See, आप लोगों को फ्रीक्वेंसी तो पता होगा. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, राइट? सो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है कि एक सेकेंड में, समझो एक सेकेंड में आपके कितने वेव्स कवर हो रहे हैं, राइट? तो हमें सोनोमीटर में देखना है कि हमारा जो वेव बन रहा है वो कितना वेव बन रहा है, फुल वेव बन रहा है, हाफ बन रहा है कि 1/4 बन रहा है. बेस्ड ऑन दैट दिस फॉर्मूला इज फॉर्म्ड. Okay, so this formula is playing a most important role in sonometer experiment. Now let's see law of length and law of tension one by one. See, the law of length. The fundamental frequency is inversely proportional to the length. See, n will be inversely proportional to the length. This means if I'll decrease the frequency, the length will increase. Now just remember this thing, you will get why we are studying this. So for now just remember that if we will decrease the frequency, the length will increase. One more thing, in this law of length, your tension and the mass should be constant. Okay, एंड टेंशन कैसे हम कांस्टेंट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग द कांस्टेंट लोड. एक्सपेरिमेंट के टाइम पे मैं आपको समझा दूंगी. अब देखो, आपका टेंशन कांस्टेंट है एंड मास भी कांस्टेंट है. नाउ कम टू द फॉर्मूला. अगर आपका टेंशन कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एंड दिस टू इज ऑल्सो कांस्टेंट, so we can keep all the constant one side and all the variable on other side. Okay, here the frequency and the length, these two things are variable, so we will keep it on one side and the constant thing on the other side. So I have done that here, nn on left side and the rest thing which is constant on the right side. So we can replace this by the constant. Hence, I can say nn should be equals to constant. Hope you have understood the law of length. Now we will understand the law of tension. What is law of tension? The fundamental frequency is strictly proportional to the square root of tension. See, this is the law of tension. Now, remember that in law of tension we have to keep frequency constant. Our frequency will be constant and we'll check the relation of tension with the length. Root L, root T is strictly proportional to the length, means the tension will increase, then the length will also increase. So we can keep this variable thing again on one side and the constant on other side like this. Okay, so here you have a L and root T variable, so keep the all resting on the left side. See, I have kept this and 2 root m, these are my constants and the variable are on other hand. So we can say that root T by L should be constant.
देखते हैं सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट जो बेस्ड है लॉ ऑफ लेंथ पर। आइए देखते हैं फुल सेटअप एंड द रिक्वायरमेंट्स। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोनोमीटर बॉक्स। सोनोमीटर बॉक्स जो होता है वो होता है लकड़ी का, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर से लंबा होता है एंड उसके एक एंड पर हुक होता है एंड अदर एंड पर सुई होती है। बाकी दो एंड पर मीटर स्केल प्लेस किए जाते हैं जिससे हम रीडिंग लेते हैं एंड इस बोर्ड को कहा जाता है सोनोमीटर बोर्ड। सोनोमीटर बॉक्स के बाद इम्पॉर्टेंट होता है ब्रिजेस। ब्रिजेस को हम प्लेस करते हैं सोनोमीटर बोर्ड पर। ये बोर्ड है, यहाँ पर मैंने प्लेस किया। एक बात याद रखना कि एक ब्रिज को हमें फिक्स रखना है 50 सेंटीमीटर पर और दूसरा ब्रिज जो रहेगा वो मूवेबल रहेगा। ओके, तो कैसे मूव करना है, क्या करना है हम देखेंगे। फिलहाल याद रखना एक ब्रिज फिक्स रहेगा, दूसरा मूवेबल रहेगा। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है स्टेनलेस स्टील का। एक एंड को हमें बांधना है सोनोमीटर के हुक से एंड दूसरे एंड पे हमें बनाना है ऐसे लूप। ओके, इस लूप में हमें हैंग करना है दिस हैंगर। याद रखो ये हैंगर है 500 ग्राम का, मतलब आधा किलो का एक हैंगर है। अब इसमें हमें वेट डालना है। मैं डाल रही हूँ 1500 ग्राम का वेट। ये एक स्लॉट जो है वो 500 ग्राम का है, सी हाफ केजी का है। तो ऐसे मैं 3 स्लॉट इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो हैंगर 500 का है एंड ऐसे 3 स्लॉट, टोटल कितना हो जाएगा 1500 प्लस 500 इज 2000 ग्राम मीन्स 2 केजी का ये लोड हो गया। ओके, एंड इस लोड को हमें स्ट्रिंग के लूप से हैंग करना होता है। फिलहाल ये स्ट्रिंग कैसे आपको हैंग करना है देखते हैं। यहाँ पर बांध दिया, इसे हमें ब्रिज के ऊपर से लेकर जाते हुए पुली से पास करना है। ये है हमारा पुली, पुली से पास करना है एंड इसे इस लूप में हैंग करना है। मेक श्योर दैट कि ये मूव ना करे, स्टेबल रहे। ओके, ये स्टेबल रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये वायर जो है यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के टाइम पे ध्यान देना है। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है ट्यूनिंग फॉक्स। ट्यूनिंग फॉक्स के लिए एक आपको एडवाइस दूंगी मैं कि जब भी आपको ये बॉक्स मिले ट्यूनिंग फॉक्स का, तो सबसे पहले ट्यूनिंग फॉक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। 512 मेरा पहला ट्यूनिंग फॉक है एंड लास्ट है मेरा 288। ओके, तो मैंने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ये है रबर पैड। रबर पैड हमें ट्यूनिंग फॉक में वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इस पर स्ट्राइक कर कर मैं वाइब्रेशन क्रिएट कर सकती हूँ। ये था रिक्वायरमेंट। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है पेपर राइडर की। ओके, एक पेपर दिया जाता है, एकदम हल्का है ये पेपर का, ऐसे टुकड़ा दिया जाता है आपको। ओके, तो इसे मैं क्या करूँगी, दोनों ब्रिजेस के बीच में रखूँगी। दोनों ब्रिजेस के बीच में रखूँगी मैं। ओके, अब जब मैं ट्यूनिंग फॉक से वाइब्रेशंस इस ब्रिज में फोर्सफुली ट्रांसफर करूंगी, तब मेरा ये स्ट्रिंग जो है वो भी वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। जब स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों भी एंड पर नोड्स बनेंगे एंड सेंटर में एंटी नोड बनेगा। नोड एंड एंटी नोड मीन्स होता है जहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड 0 है उसे हम कहते हैं नोड, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसे कहते हैं एंटी नोड। अब होता क्या है, जब मैं इसे पहले देख लो कि आपको प्लेस कैसे करना है ट्यूनिंग फॉक।
रबर पैड पे ऐसे स्ट्राइक करना है सी एंड पर, एंड ट्यूनिंग फॉर्क का फ्लैट सरफेस आपकी तरफ होना चाहिए। एंड जब आप इसे ब्रिज पर प्लेस करोगे तो आपका हाथ कहीं टच नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ओके, एंड इस स्टैंड को ब्रिज पर ही रखना है, स्ट्रिंग पर नहीं रखना है। दीज आर दी प्रिकॉशन। अभी आई एम टेलिंग यू हाउ टू प्लेस। Okay, like this we have to place. Now for the 512 we have to remember that the distance between both the bridge, दोनों भी ब्रिज के बीच का डिस्टेंस मिनिमम 10 सेंटीमीटर रखो। ओके, एंड धीरे धीरे हमें उसे मूव करना होगा कि किस लेंथ पर ये आपका राइडर गिरेगा। ओके, नाउ सी, लेट्स सी कि 10 पर गिरता है कि नहीं। नो, इट्स नॉट फॉलिंग। अभी मैं इसे थोड़ा सा मूव कर रही हूँ, देखते हैं। एंड हमेशा पेपर राइडर आपका सेंटर में होना चाहिए। नो, अगेन आई मूव। हल्का हल्का हिल रहा है, मतलब इसके आसपास ही कहीं पर होगा। फिर से मैंने स्लाइटली मूव किया। सी, मैक्सिमम वाइब्रेशन हो रहे हैं, आसपास है मतलब। मैक्सिमम वाइब्रेशन। फिर से मैक्सिमम वाइब्रेशन जहाँ मिलते हैं वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। स्लाइटली जब मैक्सिमम वाइब्रेशन मिले तब 0.5 सेंटीमीटर में उसे मूव करना है। नाउ इट्स फॉल। देखते हैं कि उसका रीडिंग कितना है। ये 50 पर है एंड सी इट्स ऑन 50। आपको मीटर स्केल भी दी जाती है, तो हम मीटर स्केल से भी रीडिंग ले सकते हैं। वेट, विल चेक इट बाय द मीटर स्केल। सी, you can see this is a 14, okay, and this is a 1, so its total length is 14 centimeter. So we can say that for 512, for the 512 tuning fork, the vibrating length is 14 centimeter. ऐसे ही आपको दो रीडिंग और लेने होते हैं। 512 के लिए देखा 14 सेंटीमीटर है। आइए देखते हैं 480 के लिए वाइब्रेटिंग लेंथ कितना है। ये 14 सेंटीमीटर है। नाउ आई एम मूविंग। ओके, सी द मैक्सिमम वाइब्रेशन था सी for the 480 we have the length 16 centimeter. Okay, from the 50 it is a 66, means from the 50 66 means कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो 480 के लिए हमें कितना आया 16 सेंटीमीटर। ये है ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस पहले देख लेते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल पर जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है? मास ऑफ द हैंगर। मास ऑफ द हैंगर कितना लिया था हमने 500 ग्राम। 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 0.5 किलोग्राम। टोटल मास कितना है? मास ऑफ द हैंगर प्लस मास एडेड। मास ऑफ द हैंगर 500 ग्राम है, 1500 ऐड किया था, कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। किलोग्राम में क्या हो जाएगा 2 किलोग्राम। टेंशन अप्लाइड टू द वायर। अब देखिए ये जो आपका लोड है, लोड जो है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब जो स्ट्रिंग है उसमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि ये लोड जो है टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो टेंशन इक्विवेलेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू mg। मास कितना है हमारा 2 किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
राइट। सो हमें एसआई यूनिट नहीं सीजीएस यूनिट चाहिए। सीजीएस यूनिट क्या होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हमें टेंशन मिल जाएगा तो 2 किलोग्राम वेट। ओके, जब आप पुट करोगे एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 980 इन टर्म्स ऑफ डायन, तो 2 इंटू 980 हो जाएगा 1960 डायन, तो हमें मिल गया टेंशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हुआ। ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट करने के बाद आते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल पर। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहला कॉलम है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, ट्यूनिंग फॉर्क को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जिस ऑर्डर में हमने अरेंज किया है उसी ऑर्डर में हमें लिखना है 512, 480, 384, 341 एंड अननोन। ओके, सेकेंड कॉलम है वाइब्रेटिंग लेंथ का, जहाँ पर हमारा पेपर राइडर फॉल होता है वो लेंथ हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी होती है। तो 512 के लिए हमने देखा था कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह सेम 2 रीडिंग मैंने लिए हैं, आपको बताया नहीं है, तो आपको भी 3 रीडिंग लेना है एक फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, सेम प्रोसीजर रहेगा 14 14 14 एंड देन तीनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे मीन फाइंड आउट करने के लिए, तो कितना आ जाएगा 14। सिमिलरली 480 के लिए 16 सेंटीमीटर आया था और 2 रीडिंग लेने हैं 16 सेंटीमीटर आया मुझे, तीनों को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 3 करना है, तो कितना मिलेगा 16 सेंटीमीटर, मीन मिल गया। अब आप नोटिस कर सकते हो कि जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया 512 से 480 पे हम आए तो क्या हो गया, वाइब्रेटिंग लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, राइट। सो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से वाइब्रेटिंग लेंथ जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। सो ये लॉ था, लॉ ऑफ लेंथ क्या था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, मीन्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर लॉ वेरीफाई हो रहा है। अब ये 2 रीडिंग हमने निकाले हैं, 3 रीडिंग मैं आपको निकाल कर बताऊंगी। ओके, 2 आपके 384 और 341 के लिए और एक अननोन के लिए। अब पूरा ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। सो ये है कंप्लीट ऑब्जर्वेशन टेबल ऑफ सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है वैसे वैसे लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, अब यहाँ पर अननोन के लिए कैसे मुझे लेंथ जो है वो इससे ज़्यादा आया, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड उसी के बेस पर हमने क्या किया, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो हमारा जो अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क था वो कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में, इसके बाद, मीन्स 341 ट्यूनिंग फॉर्क के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका लेंथ जो भी रहेगा उससे ज़्यादा आपका अननोन का लेंथ रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया बिकॉज अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ थी, 341 के बाद थी, इसीलिए इसका लेंथ क्या हो गया, हमें 21 से ज़्यादा आया। ओके, इसके बाद जो ये कॉलम आपको कंप्लीट करना होता है। अब देखिए 14 हमें मिला, 14 का हमें क्या करना है, इन्वर्स करना है, मीन्स 1/L 1/14 जब आप करोगे आपको क्या मिलेगा 0.0714। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको लॉग यूज़ करना होता है। ओके, सो लॉग टेबल की मदद से आपको ये सॉल्व करना होता है, मैंने ये आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बताया है। सो यहाँ पर है 1/14 का रीडिंग एंड 1/16, 1/18, 1/21 एंड 1/24। ओके, ये क्या है आपका मीन एल है, तो ये जो एल रहेगा उसे यहाँ पर हमें पुट करना है एंड फाइंड आउट करना है। इसके बाद आता है ये लास्ट कॉलम। ये लास्ट कॉलम क्या है, n इंटू एल का, मीन्स फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें लेंथ से। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट वाला कॉलम। अब इसे भी फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉग कैलकुलेशन टेबल दिया गया है, उससे आपको ये फाइंड आउट करना है। मैंने ये कैलकुलेशन करके आपको बताया है, 512 इंटू 14 मिलेगा 7168। सिमिलरली बाकी सब के लिए भी किया है। ओके, अब आपको क्या करना है, मीन एनएल निकालना है लास्ट कॉलम के लिए। मीन एनएल के लिए हमें क्या करना होता है, चारों रीडिंग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आपने किए हैं 1 2 3 4 टाइम्स हमने किया है, तो चारों को ऐड करोगे और डिवाइड कर दोगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा 7230.25। जब हम चारों ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 28921। जब डिवाइड करोगे 4 से तो हमें मिल जाएगा 7230.25। ओके, तो यहाँ पर हमारा मीन एनएल भी मिल गया हमें।
तो यहाँ पर आपका ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट होता है। और इस ऑब्जर्वेशन टेबल से हमें वेरीफाई हो गया कि ये लॉ ऑफ लेंथ को फॉलो कर रहा है, ऑबे कर रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ का जो रिलेशन था लॉ ऑफ लेंथ में, ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। सो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है ग्राफ बनाना है और फाइंड आउट करना है कि ग्राफ का नेचर क्या है। वाई एक्सिस पे हमें लेना है 1/L एंड एक्स एक्सिस पे हमें लेना है फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी और 1/L का ग्राफ बनाना है और देखना है कि उसका नेचर क्या है, एंड वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप, एंड स्लोप से हमें NL फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं वो ग्राफ एंड कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ NL बाय स्लोप। सो ये है कंप्लीट ग्राफ ऑफ सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट। मैंने स्लोप, NL एंड ग्राफ का नेचर सब ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। आप लोगों को ट्राई करना है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने ये कैसे कैलकुलेशन किए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस बनाना, उसके बाद होता है स्केल। ओके, सो एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है वो हमें स्केल देना होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्केल क्या दिया है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। ओके, एंड ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये स्केल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे रीडिंग्स के लिए पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद एक लाइन पास करनी है, जो ओरिजिन से पास हो। ओके, एक लाइन को ओरिजिन से पास करना है। जब हमने एक लाइन को पास किया ओरिजिन से, तो आप कह सकते हो कि ये कौन सा नेचर है, द स्ट्रेट लाइन नेचर विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ का नेचर पता चल गया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसके बाद 2 पॉइंट चूज करने होते हैं। ओके, सो मैंने ये 2 पॉइंट्स को चूज किया है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स आपके रीडिंग में है वही लो, आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो। तो मैंने ऐसे 2 पॉइंट्स कंसिडर किए जिससे मैं स्लोप फाइंड आउट करूँगी। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट A एंड पॉइंट B, x1 y1 एंड x2 y2। ओके, सो ये पॉइंट्स लेने के बाद हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब देखिए y2 क्या है 0.035, y1 कितना है 0.02, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी। ओके, उसके बाद x2 माइनस x1, x2 क्या है आपका 250, x1 कितना है 150, x2 और x1 को पुट करेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें स्लोप क्या मिल रहा है 0.00015 हर्ट्ज इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, हर्ट्ज इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कैसे मिला, अब देखो आपके y एक्सिस पे क्या है 1/L, राइट, तो ये हो जाएगा 1/L। x एक्सिस पे क्या है फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप जो है वो इक्विवेलेंट है 1/NL के। L का यूनिट क्या है सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी का क्या है हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमें स्लोप का यूनिट क्या मिल रहा है 1/सेंटीमीटर हर्ट्ज। तो इसको हम इन्वर्स लिख सकते हैं, हर्ट्ज इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला कि स्लोप जो है वो इक्विवेलेंट है 1/L के। अब हमें NL फाइंड आउट करना है बाय स्लोप के। तो हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं, सिंस स्लोप क्या है 1/NL, तो NL के लिए हम कर सकते हैं रीअरेंज करके। NL क्या हो जाएगा 1/स्लोप, राइट, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, इसको यहाँ लेके जाओ, तो हमें बाय स्लोप मिलेगा फिर NL 1/स्लोप। 1/स्लोप मीन 0.0015 पुट करना है ये स्लोप की वैल्यू। तो हमें क्या मिलेगा NL इक्वल्स टू 6666.6 हर्ट्ज सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें बाय ग्राफ NL मिल गया एंड बाय कैलकुलेशन हमें क्या मिला था 7230.25, राइट। बाय ग्राफ हमें क्या मिला है 6666.6 हर्ट्ज सेंटीमीटर। देखिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ट्ज एंड लेंथ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, राइट। सो एक अननोन फ्रीक्वेंसी हमें ग्राफ से भी मिलती है। अब देखिए हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में जब हमने उसका लेंथ फाइंड आउट किया था तो उसका 1/L भी फाइंड आउट किया था, और यहाँ पर क्या है 1/L है। तो पहले देख लेते हैं कि अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए 1/L कितना है। तो यहाँ से हम वो पॉइंट
लेंगे, चूज करेंगे एंड वहाँ से हमें डॉटेड लाइन लेना है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है एंड स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है वहाँ तक आना है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन को आपको ये डॉटेड लाइन टच करेगी वहाँ से हमें उस लाइन को ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पर। जहाँ ये लाइन एक्स एक्सिस पर कट करती है वो हमें क्या देगी, अननोन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑब्जर्वेशन टेबल जिसमें आपका अननोन फ्रीक्वेंसी का 1/L है। सो ये देखिए अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए 1/L कितना था, 0.0416। ओके, तो अब ये हम वाई एक्सिस पर देखते हैं कहाँ आता है, वहाँ से लाइन डॉटेड लाइन लेकर हमें ड्रॉप करनी है एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर वो कट होगा वो हमें देगा अननोन फ्रीक्वेंसी। तो आइए देखते हैं ग्राफ। सो ये देखिए वाई एक्सिस पे 0.04 हमें यहाँ मिला, 0.041 इसके ऊपर आ जाएगा, राइट। यहाँ से डॉटेड लाइन हमें लेनी है, स्ट्रेट लाइन तक पास आना है एंड यहाँ से ड्रॉप करनी है लाइन को एक्स एक्सिस पर। अब मेरा एक्स एक्सिस पे ये कट हो रहा है 300 के पहले थर्ड डिवीजन पर। ओके, सो थर्ड डिवीजन पर वो कट हो रहा है। 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट था, 50 हर्ट्ज के। तो यहाँ पर हम पहले स्मॉलेस्ट डिवीजन देख लेते हैं। 1 सेंटीमीटर आपका 50 हर्ट्ज के बराबर है, राइट। मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है, छोटे छोटे 10 बॉक्स है। तो एक बॉक्स किसके बराबर है, 5 हर्ट्ज के बराबर है। और ये क्या है आपके 4 बॉक्स पहले है, 4 बॉक्स पहले है मतलब 5 × 4 20। 300 में से 20 माइनस करना है, 300 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 हर्ट्ज। तो हमें अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ क्या मिल रही है, 280 हर्ट्ज। तो यहाँ से बाय ग्राफ हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, स्लोप से हमने NL फाइंड आउट किया। एंड एक और बात, जो NL होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेटेड वैल्यू से सेम होता है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली प्लस और माइनस 1000 चलता है। अगर ये आपका 7000 में आ रहा है और ये 6000 में तो चलेगा, बिकॉज ऑफ एरर ये आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से होता है। बाकी अगर ये 7000 है, ये 8000 9000 सॉरी ये 7000 और ये 9000 है तो नहीं चलेगा। सिर्फ प्लस और माइनस 1000 का एरर वैलिड है। उसके बाद आपका रीडिंग्स हो सकता है कि आपने रॉन्ग लिए हो, तो ये याद रखना कि प्लस और माइनस 1000 का डिफरेंस चलता है, मीन्स आपकी रीडिंग्स जो है वो करेक्ट है। इसके बाद हमें देखना है NL बाय सॉरी नॉट NL, फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन। ओके, ये देखिए फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, मीन NL का यूज करना है। ओके, हमें पता है NL क्या है, इज इक्विवेलेंट टू N डैश L डैश। वाई, बिकॉज NL क्या है, कांस्टेंट है। ओके, NL कांस्टेंट है, सो N1 L1 विल बी इक्वल्स टू N2 L2। तो यहाँ पर N1 L1 हमने ले लिया है बाय द मीन। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है N2। L2 हमारे पास है क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आपको क्या देगी, N2 इक्वल्स टू N1 L1 डिवाइडेड बाय L2। ओके, यही है। तो इसे मैं क्या ले लूँगी, मीन। तो ये NL मीन डिवाइडेड बाय L2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये अननोन फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 की जगह हम अननोन भी लिख सकते हैं। ओके, अननोन। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा अननोन इज इक्वल्स टू मीन NL अपॉन L अननोन। ओके, सो मीन NL हमें क्या मिला था, 7230.25, राइट। तो यहाँ पर पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय L अननोन। L अननोन कितना है, 24। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है लॉग से, और मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बताया है। क्या मिला है मुझे, 290 हर्ट्ज। तो बाय कैलकुलेशन मुझे फ्रीक्वेंसी अननोन फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, 290 हर्ट्ज। एंड बाय ग्राफ कितना मिला था, 280 हर्ट्ज। एंड यहाँ पर देख सकते हो कि 341 के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी है अननोन फ्रीक्वेंसी, राइट। मीन्स इसका लेंथ क्या हो गया है, इसके बाद बड़ा है। ओके, एंड ये आपको अननोन फ्रीक्वेंसी लास्ट था, जब आपने अरेंज किया तो वो लास्ट में आया था, इसीलिए इसका लेंथ बड़ा है। ओके, सो याद रखना कि ये इसके बाद आया इसीलिए इसका लेंथ बड़ा है। हो सकता है कि आपका अननोन जो है वो भी ये भी हो, तो आपको क्या करना है, ये रीडिंग ले लोगे, फिर ये रीडिंग लोगे, ये रीडिंग कहाँ नोट डाउन करोगे, यहाँ नोट डाउन करोगे, राइट।
तो आपको पता चल जाएगा कि इसका लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, इससे ज़्यादा रहेगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा अननोन बाय कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया। अब आपको ये रिजल्ट में सब नोट डाउन करना है। तो देखिए, अननोन फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन 290 हर्ट्ज आया है, अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ 280 हर्ट्ज आया है, एनएल बाय कैलकुलेशन 7230.25 हर्ट्ज सेंटीमीटर, एंड बाय ग्राफ क्या मिला हमें 6666.6 हर्ट्ज सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सोनोमीटर 1 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है।